Please write down today's date. Write down today's date. Write down the topic. Very good. Keep module 1 in front of you. We have done few questions, few are left. Okay. Today we are going to use Pythagorean triplet. Last time I asked you, have you done it in class? You said no. Pythagorean triplet you don't know. So have you done till now? Have you done? Raise your hand if you have done Pythagorean triplet in class. Okay, if not done, then listen to me carefully, beta. Everybody look straight. This is related to your 7th class, जो आपने Pythagoras theorem पढ़ी हुई है. Everybody look straight, बेटे. Very good. Look forward, all of you. Understand it, then start writing. You know you have read about Pythagoras theorem. Raise your hand. Have you read about Pythagoras theorem, बेटा? 7th में use की थी आपने. Pythagoras theorem. Okay, नाम सुना हुआ है आपने? अगर आपको याद नहीं है तो it is okay. Have you heard the name, बेटा? Okay, please look here now that this is very, very important for you. This square chapter is related to your Pythagoras theorem. You know what happens in Pythagoras theorem? It says that in a right angle triangle, hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. Okay, if you have a right angle triangle like this, and we have A, B and C over here, then C square is equal to A square plus B square. It's always like this. This is Pythagoras theorem. अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है तो please understand. Okay, same thing we are applying here. ये आपके पास right angle triangle है. In this we have hypotenuse is equal to m square plus 1, base is 2m and perpendicular is m square minus 1. Okay, तो ये जो तीन numbers हैं, perpendicular, base and hypotenuse, together they make a Pythagorean triplet. Okay, तो Pythagorean triplet कौन कौन से हुए? m square minus 1, 2m and m square plus 1. Let us take an example. For example, for m is equal to 2. m की वैल्यू लेते हैं, यहाँ पे m square minus 1 निकालते हैं, यहाँ पे 2m निकालते हैं और यहाँ पे निकालते हैं m square plus 1. Make column please. Everybody make it. अपने आप बनाओ ये. I'm drawing the lines once again so that you see it nicely. Look here, all of you. We are making column of m, then m square minus 1. ठीक है, then we are making 2m, then we are making m square plus 1. Please इसको अच्छे से understand कर लो. Okay, ये आपके chapter का ही part है. We are talking about Pythagorean triplet जो आपके chapter में अभी use होने वाला है. Today we are going to do question from module also. Please draw this right angle triangle in which sides are given to you. Very good, everyone. इतना बना लो, उसके बाद we'll be doing further. Till here. Yes, हाथ खड़े कर देना when you note down till here. Have you noted till here, beta? Have you made this table? आवाज भी आ रही है कि नहीं? बेटे, can you hear me, all of you? हाथ खड़ी करो. Yes, you can hear me. Very good. Very good. Hands down. जब इतना नोट कर लोगे, टेबल बना लोगे, ट्रायंगल बना लोगे, let me know. हाथ खड़ी कर देना जब आपका ये काम कंप्लीट हो जाएगा यहाँ तक का.
Raise your hand who have done till here. Very good, very good. Okay, good बेटा. Start writing. M की वैल्यू डालना शुरू करो. M इज इक्वल टू हमने 2 लिया तो हमारे पास ये तीन वैल्यूज कौन कौन सी आ रही हैं? M स्क्वायर माइनस 1 इज 3, 2M इज 4 एंड M स्क्वायर प्लस 1 इज 5. फिर हमने M इज इक्वल टू 3 लिया, हमारे पास आया 8. ठीक है, यहाँ पे आया 6 और यहाँ पे आया हमारे पास M स्क्वायर प्लस 1, इट विल बी 10. ठीक है, M की वैल्यू हम डालते जा रहे हैं और हमारे पास उनकी वैल्यूज जो है वो बनती जा रही हैं. इट्स फाइन, एवरीबडी इज डन. तो आपको ये पता चला है इसमें कि हमारे पास जो M स्क्वायर माइनस 1, 2M और M स्क्वायर प्लस 1, ये जो तीन नंबर्स हमारे पास बने हैं 3, 4, 5 एंड 8, 6, 10, ये हमारे पास क्या है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट. इनको हम बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट. ओके, उनकी शक्ल कैसी होती है? वो इस फॉर्म में होते हैं. अगर हमें M पता है तो ये एक M स्क्वायर माइनस 1 होगा, दूसरा 2M होगा और तीसरा हमारे पास M स्क्वायर प्लस 1 होगा. ये की पॉइंट्स में आपने लिखना है. ओके, बिकॉज इसको बार बार आप यूज करोगे. इट्स अ पार्ट ऑफ योर चैप्टर. बेटे एनी डाउट टिल हियर? हैव यू अंडरस्टूड कि ये तीन हमारे पास जो नंबर्स हैं M स्क्वायर माइनस 1, 2M एंड M स्क्वायर प्लस 1, ये तीन नंबर हमारे पास, इनको हम बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट. हैव यू अंडरस्टूड टिल हियर? हाथ खड़ी करो. हैव यू अंडरस्टूड टिल हियर? वेरी गुड, वेरी गुड. हैंड्स डाउन. ठीक है, योर हैंड्स, व्हेन यू रेज योर हैंड आई कम टू नो दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स. ओके, तो आपको ये पता चला है. अभी हमने सिर्फ दो एग्जांपल लिए हैं. M इज इक्वल टू 2 लिया, 3 लिया, फिर उसके बाद हमने ये निकाले कि हमारे पास ट्रिपलेट क्या बन रहा है. 3, 4, 5 एंड 8, 6, 10. ये की पॉइंट्स में आपके पास आ जाएगा. ओके, तो अगर आपको कोई भी नंबर दिया हो कि क्या ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं है, अगर M इज इक्वल टू वैल्यू दी है फिर तो बहुत ही ईजी है आपके लिए करना. ठीक है, M की वैल्यू डालोगे और निकाल लोगे. लेट अस चेक. ओके, पहले सेकंड की पॉइंट लिखो, उसके बाद फिर हम आगे करते हैं. यू नो बेटा, लास्ट क्लास में हमने किया था व्हाट आर स्क्वायर नंबर्स. सबको पता है व्हाट आर स्क्वायर नंबर्स? स्क्वायर नंबर या परफेक्ट स्क्वायर नंबर सबको पता है? हाथ खड़े करो. डू यू रिमेम्बर? ओके, पेज टर्न करो. पीछे हमने लिखा था बेटा, हमने लास्ट क्लास में लिखा था, उससे पहले लिखा होगा की पॉइंट्स में मैंने आपको लिखवाया था व्हाट आर स्क्वायर नंबर्स. कौन बता रहे हैं स्क्वायर नंबर कौन से होते हैं? राइट डाउन सेकेंड पॉइंट. 1, सॉरी, राइट डाउन 1 एंड देन 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 से स्टार्ट करो इसको. इवन इफ यू आर राइटिंग फॉर द सेकेंड टाइम डजेंट मैटर, बिकॉज जब तक आपको चीज ग्रास्प करते हो उसको लिखो. जितनी बार लिखोगे उतना ज्यादा आपको समझ आएगा. इवन इफ आपने पहले लिखा हुआ इसको प्लीज दोबारा लिखो. सी 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4. 1 प्लस 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9. क्या ये 4 और 9 स्क्वायर नंबर है? इफ यस, रेज योर हैंड. आर दे स्क्वायर नंबर्स? यस, यू नो. यस, 4 को आपने 2 स्क्वायर लिखा, 9 को आपने 3 स्क्वायर लिखा. तो आगे आप लिखो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7. क्या ये स्क्वायर नंबर है? 4 स्क्वायर आपके पास आया, आपने बोला 16. यस, स्क्वायर नंबर है. तो ये सारे के सारे आपके पास क्या आए हैं? स्क्वायर नंबर्स. स्क्वायर नंबर.
और इसको और क्या बोलते हैं? परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, स्क्वायर नंबर। ठीक है, आप नोट्स बना रहे हो अपनी, नाइसली पॉइंट्स लिख रहे हो, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हो विथ फुल अंडरस्टैंडिंग। ये सारे हमारे पास स्क्वायर नंबर्स हैं। ठीक है, वो स्क्वायर नंबर कहां से आए हैं हमारे पास? हमने क्या किया यहाँ पे? यहाँ पे क्या कर रहे हैं? एड सक्सेसिव ऑड नंबर, सक्सेसिव ऑड नंबर्स को आप ऐड करते जा रहे हो और आपके पास एक नया स्क्वायर नंबर बनता जा रहा है। ठीक है, आपने दो ऑड नंबर्स को प्लस किया तो 2 स्क्वायर, 3 ऑड नंबर्स को प्लस किया तो 3 स्क्वायर, 4 को ऐड किया तो 4 स्क्वायर। प्लीज मेक इट योरसेल्फ। नेक्स्ट वन, अपने आप बनाओ एक नेक्स्ट वाला। क्या क्या प्लस करोगे? आई विल आस्क यू, नेक्स्ट वाला स्क्वायर नंबर कौन सा बन रहा है? वेरी गुड। यस, लास्ट बेंच गर्ल बेटा, साइड रो विंडो के पास। अच्छा चलो आ जाओ, आप आ जाओ। यस, कैन यू टेल मी व्हाट इज द नेक्स्ट स्क्वायर नंबर एंड हाउ आर यू गेटिंग? What should I write here? 1 plus 3. Sorry, just a minute. 1 plus 3. 5. 5. Plus 7. Yeah. Plus 9. Plus 9. What are you getting? 5 square. 5 square. 1, 2, 3, 4, 5. 5 नंबर आपने ऐड किए एंड यू आर गेटिंग स्क्वायर नंबर। वेरी गुड बेटा। ठीक है, इट विल कंटिन्यू लाइक दिस। ये आपको याद रहना चाहिए कि हम ऑड नंबर्स को प्लस करते हैं, जितनी ऑड नंबर्स को प्लस करेंगे उसी का ही वो स्क्वायर बनता जाएगा। ठीक है, तो लास्ट में लिखो 1 plus 3 plus 5 dot 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 up to n is equal to n square. Write down this, which will help you in counting any number of odd numbers. सिर्फ आपने ऑड नंबर्स को काउंट करना है तो आपके पास उसका स्क्वायर आ जाएगा सामने। एनी डाउट हियर? पैटर्न आपको पता चल गया? Raise your hand. Have you understood this one? Second key point. You will be using it in questions. Very good. Write down third point. I'm closing it. I hope everybody has noted. Third point. Write down 1. 1 plus 2 is equal to 3. 1 plus 2 plus 3 is equal to 6. 1 plus 2 plus 3 plus 4 is equal to, add करो जरा कितना आ रहा है? What it should be? 6 के बाद 10, right? And so on. यहाँ पे आप क्या ऐड कर रहे हो? काउंटिंग नंबर्स को ऐड करते जा रहे हो। ठीक है, जब इन काउंटिंग नंबर्स को हम ऐड करते हैं तो ये हमारे पास क्या बनते हैं? ये सारे नंबर दे बिकम ट्राइंगुलर नंबर्स। ओके बेटा, ये लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अंडरस्टैंडिंग इज वेरी अर्जेंट बिकॉज आपके क्वेश्चंस ये यहाँ से आने वाले हैं। ये की पॉइंट्स आपके यूज होंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब आपसे पूछे कि ट्राइंगुलर नंबर कौन कौन से हैं, आप बोल सकते हो 1, 3, 6, 10। यहाँ पे लिख लो इज इक्वल टू 1, इसको 1 ही लिख लो, 1 भी हमारे ट्राइंगुलर नंबर के बीच में आता है। ठीक है, ये सारे हमारे ट्राइंगुलर नंबर्स है 1, 3, 6, 10 एंड सो ऑन। आपसे कोई पूछे कि 21 को चेक करो, चेक 21 कि क्या वो एक ट्राइंगुलर नंबर है कि नहीं है, कैसे चेक करोगे? आपको ये तो याद हो गया, 3 और 6 याद हो गया, तो 3 और 6 के बाद ऐड कर दो नेक्स्ट वाले नंबर 7, 8, 9, ऐड करके चेक कर लो कि क्या हमारे पास 21 आता है। अपने आप चेक करो जरा इसको अपने आप, कितने नंबर्स और ऐड करोगे कि 21 आए? क्या 21 आता है आपके पास नंबर? रफ कॉलम में चेक करो। आई वॉन्ट टू आस्क यू कि 21 एक ट्रायंगुलर नंबर है या नहीं है। हाउ विल यू कम टू नो?
6 आपको पता है ट्रायंगुलर नंबर है, 6 के बाद मैंने नेक्स्ट सक्सेसिव नंबर लिया है, राइट? कितने नंबर्स ऐड होंगे कि 21 आए? कितने नंबर ऐड करेंगे? 6 + 7 + 8, ठीक है, 9 की जरूरत नहीं है। आर यू गेटिंग 21? सक्सेसिव नंबर्स को ऐड करके 21 आ रहे हैं आपका, 6 + 7 + 8 करके? हु आर गेटिंग 21? रेज योर हैंड बेटा, जिन जिनका आ रहा है। इसका मतलब 21 एक ट्रायंगुलर नंबर है। क्या 22 है? 22 को चेक करो जरा, 22 एक है ट्रायंगुलर नंबर? ये 21 तो है, चलो। हु से कि 22 भी एक ट्रायंगुलर नंबर होगा? हाथ खड़े करो। 22 कैनॉट बी ए ट्रायंगुलर नंबर, बिकॉज यहां तक आपके पास आपने कर दिया कि हमारे पास 6 + 7 + 8, हमारे पास 21 आया है, तो अगला नंबर तो हमारे पास 9 है, डायरेक्टली 9 ऐड होगा उसमें। 9 से कम तो ऐड ही नहीं हो सकता, हमारी सक्सेसिव नंबर जो है ऐड होना चाहिए, उसके हिसाब से 22 से बड़ा नंबर आ रहा है, 22 नहीं आ रहा है। इट इज नॉट अ ट्रायंगुलर नंबर। ठीक है बेटा, अभी हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे, फिर आपको पता चलेगा। और यहां पे हम क्या कर रहे हैं? राइट डाउन स्टेप्स, ऐड सक्सेसिव नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर्स को आप प्लस करते जा रहे हो और आपके पास एक बनता जा रहा है वो। एड सक्सेसिव नेचुरल नंबर। टू थिंग्स यू हैव लर्न विच आर न्यू फॉर यू टुडे, कि जब आप ऑड नंबर्स को प्लस करते हो कंटिन्यूशन में, आपके पास एक स्क्वायर नंबर बनता है। जब आप कंटिन्यूशन में नेचुरल नंबर्स को प्लस करते हो तो आपके पास क्या बनता है? ट्रायंगुलर नंबर बनता है। ओके, फोर्थ पॉइंट, रिलेशन बिटवीन triangular number and write down triangular and square number। ये चैप्टर बहुत ज्यादा वास्ट है, बहुत सारी चीजें इसमें यूज हो रही हैं। देर आर मोर की पॉइंट्स, इतने ज्यादा की पॉइंट्स किसी भी चैप्टर में नहीं है जितने इस चैप्टर में है। रिलेशन बिटवीन ट्रायंगुलर नंबर एंड स्क्वायर नंबर, अभी रिलेशन क्या होता है हमें वो भी पता करना है। सी, अभी अभी आपने लिखा कि 1, देन अभी लिखना नहीं है, पहले समझ लो इसको। 1 + 2 3, आपने अभी अभी ट्रायंगुलर नंबर्स लिखे थे। फिर आपने लिखा कि 1 + 2 + 3 = 6। फिर आपने लिखा 1 + 2 + 3 + 4 = 10। अभी अभी आपने ट्रायंगुलर नंबर लिखे थे। ओके, तो ट्रायंगुलर नंबर्स के जब हम कंसेक्टिव नंबर्स को प्लस करते हैं, 1 + 3 = 4, विच इज इक्वल टू अ स्क्वायर नंबर। 3 + 6 = 9, which is equal to a square number. 6 + 10 = 16, which is equal to 4 square and so on। ये स्टोरी चलती जाएगी आगे आगे कि जब हम कंसेक्टिव ट्रायंगुलर नंबर्स को ऐड करते हैं, वी गेट अ स्क्वायर नंबर। ओके, इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको सेंटेंस फॉर्म में लिखवाऊंगी। ये चीजें आपकी असर्शन रीजन में काम आएंगी जब सेंटेंस फॉर्म में आपको पूछा जाता है कि डज इट हैपन और नॉट, और आपको ट्रू और फॉल्स बताना होता है। ठीक है, राइट डाउन, नीचे सेंटेंस लिख लो। सम ऑफ, दैट इज सम ऑफ consecutive triangular numbers is a square number।
आई होप कंसेक्टिव वर्ड पता है सबको. डू यू नो कंसेक्टिव नंबर्स कौन से होते हैं? चलो ये नोट डाउन करो, देन आई आस्क यू. अभी आपकी कंसंट्रेशन इसके ऊपर है, अंडरस्टैंडिंग पे, लिखने पे. ठीक है, जो चीज नहीं समझ आ रही है यू कैन आस्क मी. किसी को कुछ पूछना है यू कैन आस्क मी. ओके, मिडिल रो से लास्ट गर्ल, प्लीज कम बेटा, टेल मी व्हाट आर कंसेक्टिव नंबर्स. ये तो आपने पढ़ा हुआ है छोटी क्लासेस में भी, सेवंथ में भी पढ़ा होगा. कंसेक्टिव नंबर्स क्या होते हैं? अगर नहीं पता तो हम डिस्कस करेंगे, डजेंट मैटर, है ना. कई बार पढ़ी हुई चीज में भूल जाती है, इट्स ओके, तो क्या हो गया. यू हैव जस्ट एंटर्ड इन द 8th क्लास, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि अगर नहीं पता तो इट इज ओके, वी विल डिस्कस. डिड यू नो? रेज योर हैंड. नो यू डोंट नो, है ना, इट्स ओके, बैठो बैठो. अच्छा हुआ पता चल गया मुझे. एंड एनी अदर चाइल्ड बेटा फ्रॉम योर क्लास, व्हाट आर कंसेक्टिव नंबर्स? बेटा कंसेक्टिव नंबर्स होते हैं नेबरिंग नंबर्स, आस पास वाले. चलो लिख लो इसको, ठीक है, नोट फॉर्म में लिख लो इसको. 5th पॉइंट लिख लो. कंसेक्टिव नंबर्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके लिए बेटा. कंसेक्टिव नंबर्स आर नेबरिंग नंबर्स. नेबरिंग नंबर्स तो पता ही होगा ना आपको, कोई जो आसपास होते हैं. मैंने आपको बहुत इजी लैंग्वेज में लिखवाया है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, जो चीज आप कभी भूलोगे नहीं. कंसेक्टिव नंबर्स आर नेबरिंग नंबर्स, जो अपने आसपास होते हैं. 2 and 3 आर कंसेक्टिव नंबर्स. 9 and 10 आर कंसेक्टिव नंबर्स. 199 आर कंसेक्टिव नंबर्स, जो बिल्कुल आसपास है, जिनके बीच में कोई गैप नहीं है. ठीक है, राइट डाउन, एग्जाम्पल लिखो इनके साथ साथ. चलिए क्लियर, अपर वन बेटा, ऊपर वाला पॉइंट क्लियर हो गया सबको? 4th वाला, प्लीज रेज योर हैंड. 4th point is clear to everyone, relation between triangular and this. हाथ खड़ी करो. Have you understood? Very good बेटा, I'm going to clear it. ठीक है, अभी हम कंसेक्टिव नंबर्स की बात करते हैं. थोड़े से इसके एग्जांपल्स लिख लो, क्योंकि आई वांट कि आपका कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है. क्वेश्चंस तो आप बहुत सारे कर ही लोगे, अपनी बुक से भी करोगे, मॉड्यूल से भी करोगे, है ना. वी आर डूइंग सच थिंग जो आपकी बहुत आगे काम आने वाली है, और आपको भूलेगा नहीं जब आप स्टेप्स में इसको लिखोगे. प्लीज राइट डाउन एग्जांपल्स. कंसेक्टिव नंबर्स और नेबरिंग नंबर्स मैंने बताया. फर्स्ट एग्जांपल लिखो. एग्जांपल, फॉर एग्जांपल, ए पार्ट. 1 2 3 and so on, these are consecutive numbers. ये सारे कंसेक्टिव नंबर्स हैं, ऑर्डर में कर रही हूँ, कोई नंबर मिस नहीं हो रहा है, चलता जा रहा है. ठीक है. व्हाट काइंड ऑफ दीज 2 4 6 8, ये कैसे नंबर्स हैं, इनको क्या बोलेंगे? 2 4 6 8 क्या कैसे नंबर्स हैं ये, इनको क्या बोलते हैं बेटा? आर दे इवन नंबर्स? पता है सबको? हाथ खड़े करो. 2 4 6 8 ये सारे इवन नंबर्स है, पता है आपको? वेरी गुड. तो लिख दो यहाँ पे, दे आर कंसेक्टिव इवन नंबर्स. ये सारे कंसेक्टिव इवन नंबर्स हैं, क्योंकि 2 और 4 के बीच में कोई और इवन नंबर नहीं आता. 4 और 6 के बीच में कोई और नहीं आता. 6 और 8 के बीच में कोई और नहीं आता. कंटिन्यूसली इवन नंबर्स आर गोइंग ऑन. तो इसका मतलब है दे आर ऑल कंसेक्टिव इवन नंबर्स. राइट डाउन कंसेक्टिव ऑड नंबर्स, अपने आप लिखो, लिस्ट बनाओ. डैश 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 आर कंसेक्टिव ऑड नंबर्स. प्लीज अपने आप लिखो इसको.
Write down which points will come. Yes, middle row बेटा, first girl who is sitting alone. कौन कौन से एग्जाम्पल्स आएंगे इसमें? आई नो सबने लिख लिए होंगे ये. हाँ जी बेटा. हाँ. ओके ओके. 1 3 5 7 and so on. These are all odd numbers which are consecutive. Very good beta. Sit down. These are consecutive odd numbers. देखो आज मैंने सिर्फ आपको 2 की पॉइंट्स लिखवाने थे, लेकिन अभी हमारे पास 5 की पॉइंट्स बन गए हैं, बिकॉज जितनी आपको क्लैरिटी होगी टॉपिक्स की, वर्ड्स की, कंसेक्टिव वर्ड आप बहुत यूज करने वाले हो आगे, तो उतनी ज्यादा आपके क्वेश्चंस बेटर होंगे. ओके, तो हमने ये सारा कुछ लिख लिया. अभी चलो अभी मॉड्यूल पे आते हैं, क्वेश्चंस करते हैं. क्वेश्चंस आपको बहुत इजी लगेंगे क्योंकि आपने की पॉइंट्स लिखे हुए हैं. एंड वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन प्लीज यूज योर की पॉइंट्स ऑल्सो. देखा करो कि अभी हमने की पॉइंट में क्या लिखा था और उसको हम क्वेश्चन में आगे कैसे यूज कर रहे हैं. ओके, सी एमसीक्यू हमने किए थे. आई थिंक वी डिड टिल क्वेश्चन नंबर 5. एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 5 तक किए थे हमने. रेज योर हैंड, हैव यू डन टिल 5th क्वेश्चन? हाँ किया हुआ है आपने. क्वेश्चन नंबर 6. Question number 6 is the Pythagorean triplet with the smallest number 10 is. Smallest number 10. ठीक है, हमें चेक करना है कि हमारे पास नीचे जो ऑप्शंस दी हुई है, 3 नंबर जो दिए हुए हैं ग्रुप में, उनमें से हमें देखना है कि इसमें से पाइथागोरियन ट्रिपलेट कौन सा है. पाइथागोरियन ट्रिपलेट का मतलब अभी अभी आपकी पॉइंट्स में आपने लिखा कि हमारे पास m² - 1 2m और m² + 1. ऐसे ही अगर 3 नंबर हैं हमारे पास तो हम बोलेंगे कि हमारे पास ये है पाइथागोरियन ट्रिपलेट. उनकी शक्ल ऐसी होनी चाहिए. अब आपको कैसे पता चलेगा? यहाँ तो बहुत सारे नंबर्स दिए हुए हैं. ठीक है, लेट अस ट्राई फॉर फर्स्ट वन. ए वाला ट्राई करते हैं. उसमें आपके पास है लेट अस टेक 10 24 एंड 26. इसको हम चेक करते हैं. ठीक है, चेक करते हैं क्या ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कि नहीं है. आप पहली बार ये क्वेश्चन कर रहे हो तो पहले समझ लो. प्लीज अंडरस्टैंड इट फर्स्ट एंड देन राइट डाउन. ओके, सी हमने चेक करना है तो उसके लिए हमें पता है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट तो ये तीनों होते हैं. लेट अस टेक let 2m is equal to 10. ये एमसीक्यू है लेकिन पूरा क्वेश्चन आपको परफॉर्म करना पड़ेगा. प्लीज राइट डाउन ऑल द स्टेप्स. let 2m is equal to 10. तो m is equal to हमारे पास कितना हो जाएगा? 5. ओके, व्हाट इज m² - 1? 25 - 1 is equal to 24. ठीक है, एंड m² + 1 which is equal to 25 + 1 is equal to 26. हमें इस क्वेश्चन में बेटा दिया हुआ था कि एक आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट, एक नंबर 10 है, तो एक नंबर 10 है तो हमने m इसको हमने लेट कर लिया. यहां से हमने क्वेश्चन शुरू किया कि लेट 2m is equal to 10. क्यों हमने किया 2m is equal to 10? ताकि हमें m की वैल्यू पता चल जाए. m is equal to 5 आ गया. उसके बाद हमने m² - 1 निकाल लिया, m² + 1 निकाल लिया. वी हैव कम टू नो कि उनकी वैल्यूज ये हमारे पास 24 एंड 26 आ रही हैं. ये दे आर कमिंग इन दिस फॉर्म, ये इस फॉर्म में बन रहे हैं, हमारे साथ मैच कर रहे हैं. देयरफॉर आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी ए ऑप्शन. ठीक है, क्वेश्चन पूरा परफॉर्म करो यहाँ पे नोटबुक में. डोंट थिंक कि ये एमसीक्यू है तो उसको डायरेक्टली बस आंसर कर देना है आपने. ठीक है, हैव यू अंडरस्टूड दिस ए पार्ट बेटा? ऐसे क्वेश्चन आप अपनी बुक में भी करोगे. ओके, इन सच क्वेश्चन यू हैव टू सपोज कि एक नंबर 2m को हमने 10 सपोज कर लिया, उसके बाद हमने m² + 1 और m² - 1 निकाल लिया और उससे हमारे पास ये नंबर्स आ गए. ओके, दिस इज ए ऑप्शन, यू कैन मार्क इट.
Seventh question. The smallest number by which 392 must be multiplied. Question number 7. 392. इसको किससे मल्टीप्लाई करें so that the product is becoming a perfect cube? परफेक्ट क्यूब बनना चाहिए, ठीक है, किसी नंबर का क्यूब। बेटा क्यूब पढ़ा है आपने क्लास में? क्लास में किया है आपने? क्यूब क्या होता है? ओके, मेरे को बताओ जरा, 8 किसका क्यूब होता है? क्या बता सकते हो 8 किसका क्यूब होता है? फर्स्ट बॉय वॉल के साथ। वेरी गुड, कम फॉरवर्ड बेटा। हाँ जी, आज ओके, आ जाओ बेटा। यस, वेरी गुड। जितनी फास्ट आओगे उतनी जल्दी जल्दी हमारा काम होगा। 8 इज अ क्यूब ऑफ व्हाट? 2। यस, माइक माइक नहीं ऑन किया आपने, मैंने आपके लिपसिंग के उससे देख लिया। व्हाट इज दैट बेटा? 2। इट इज 2 क्यूब। इट इज 2 क्यूब। क्या आपने क्यूब किया हुआ है बेटा क्लास में? Oh, then you will be understanding. Yes. Okay. Can you tell me 49 क्या किसी का क्यूब है? No, 49 नहीं है because it is 7 square. Okay, चलो, very good. We'll be doing this कि हमें ये पता करना है 392 को किसके मल्टीप्लाई करें स्मॉलेस्ट नंबर से ताकि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। ठीक है, तो हमें इसके फैक्टर्स निकालने हैं। लेट अस राइट डाउन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस। शुरू करो इसकी। प्राइम फैक्टराइजेशन आपने 6 में सीखी हुई है। एवरीबडी स्टार्ट डूइंग। 392 वेरी वेरी स्मॉल नंबर, 2 से स्टार्ट करो। मेरा कॉपी डाउन नहीं करना, सब अपना अपना करो एंड देन चेक फ्रॉम द बोर्ड। प्राइम फैक्टराइजेशन करके इसके फैक्टर्स लिखो। 392 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। ओके, व्हाट आर यू गेटिंग? बाय विच नंबर इट शुड बी मल्टीप्लाइड? आपको पता है कि यहाँ पे 2 के भी 3 के पेयर बन रहे हैं, 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे 7 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक एक्स्ट्रा आपको 7 चाहिए। ठीक है, तो व्हाट शुड बी द आंसर? जिनको लगता है सी ऑप्शन है, हाथ खड़े करो। इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 7 टू गेट इट अ परफेक्ट क्यूब। वेरी गुड। सो इट इज सी ऑप्शन दैट यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 7। 7 की कमी है यहाँ पे, है ना? एक और 7 आ जाता तो हमारे पास कंप्लीट क्यूब बन जाता। 8th क्वेश्चन बेटा, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 8192 मस्ट बी डिवाइडेड? किस नंबर से इसको डिवाइड करें ताकि एक परफेक्ट क्यूब बन जाए? क्या करोगे इसमें? कैसे शुरू करोगे इसको? क्या आप दोबारा से इसके प्राइम फैक्टराइजेशन लोगे? परफेक्ट क्यूब जो चेक करते हो वो किसके लिए करते हो? इसके प्राइम फैक्टराइजेशन से ही करते हो ना? शुरू करो करना बेटा। वेरी गुड। इट इज द नंबर इज गिवन टू यू 8192। ओके, टेक द प्राइम फैक्टराइजेशन। चेक करो जरा कि किससे हम डिवाइड करेंगे ताकि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। स्टार्ट डूइंग। आपकी थोड़ी सी फास्ट होनी चाहिए कैलकुलेशन। इवन नंबर है। 4 2 8, 0 9 2 18, 6 2 12। एवरीबडी इज गेटिंग 4096, या कई बच्चों को 496 भी आ रहा है? कई बच्चे 496 भी लिख रहे होंगे, मुझे पता है। एवरीबडी इज राइटिंग 4096 या फिर 496? हाथ खड़े करो जो 4096 लिख रहे हैं।
यस 4096 आएगा, कोई डाउट नहीं है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे 4 टू 8 है, यहाँ पे 19 है। 1 इज नॉट गोइंग बाय 2 टेबल, तो हम 9 को इकट्ठा ले रहे हैं, दो डिजिट जब इकट्ठे लेते हैं देन वी टेक इट एज 0। सो अगेन बाय 2 यू आर डूइंग 2 टू 4 0, 4 टू 8, 8 टू 16। ठीक है, इसके वो ट्रिपलेट्स बनाओ आगे। अपने आप करो और बोर्ड से चेक करो फिर। सिक्स टू 12, डू इट योर सेल्फ। कंटिन्यू करते जाओ इसको, बहुत सारे नंबर्स आ रहे हैं, बट वेरी सिंपल बिकॉज यू आर गेटिंग इवन नंबर्स। सारे आपके पास इवन नंबर्स आ रहे हैं, क्वेश्चन बिकमिंग इजी फॉर यू। ओके चलो आप ही बताओ मेरे को कितने आ रहे हैं 3 3 के। किन्होंने अपने आप किया हाथ खड़े कर दो, जिन्होंने अपने आप प्राइम फैक्टराइजेशन की है। वेरी गुड, ब्रेव चिल्ड्रन, वेरी गुड बेटा। प्लीज एक बार मैच कर लो, इनके ट्रिपलेट्स बना लो। 3 3, हियर ऑल्सो 3, इसको इंक्लूड करके, ठीक है, एंड हियर ऑल्सो 3। तो अब मेरे को बताओ किससे डिवाइड किया जाए ताकि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। ऑप्शन क्या आनी चाहिए आपके पास? जिनको लगता है ए ऑप्शन है हाथ खड़े करो। बी ऑप्शन, जिनको लगता है बी ऑप्शन होनी चाहिए। सी ऑप्शन, जिनको लग रहा है सी ऑप्शन होनी चाहिए। वंडरफुल, सी ऑप्शन कि हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। Three numbers are in the ratio 1, ratio 2, ratio 3. The sum of their cubes is this. Three numbers are in the ratio 1, ratio 2, ratio 3. जब आपके पास रेशो वाला क्वेश्चन होता है, आपको एक बताया होगा परमानेंटली कि जब भी रेशो हम यूज करते हैं उनको हम सपोज करते हैं लेट नंबर्स बी 1x, 2x एंड 3x। ठीक है, अब 1x के बदले में अकेला x भी ले सकते हो, नो नीड टू राइट 1 विद दैट। ठीक है, 3 नंबर आपके पास ये हो गए, x, 2x एंड 3x। जब भी आपके पास रेशो वाला क्वेश्चन आता है किसी भी चैप्टर में, आप उसको नंबर्स बनाते हो, 1x है, 2x एंड 3x है, ठीक है। सम ऑफ देयर क्यूब्स, राइट डाउन, सम ऑफ देयर क्यूब्स, इनके क्यूब्स का स्क्वायर, क्यूब्स का सम इज इक्वल टू, आपको दिया हुआ है 98784। दिस इज द क्वेश्चन। ओके, प्लीज ओपन द ब्रैकेट। x cube plus 8x cube plus 27x cube is equal to 98784। करते जाओ, अपने साथ साथ करते जाओ। एवरीबडी नोज हाउ टू ओपन द ब्रैकेट, ठीक है, कीप डूइंग। आपके पास आ रहा है आफ्टर एडिंग 36 cube is equal to, I hope you will be revising these all questions at home. प्रॉपर ये एमसीक्यू भी एक सब्जेक्टिव की फॉर्म में है सारा का सारा क्वेश्चन। ओके, आई एम डूइंग इट फॉर यू। 98784 डिवाइडेड बाय 36, जब इसको लोएस्ट टर्म में करोगे, काटो इसको, कितना आ रहा है? लोएस्ट टर्म में करके इसको चेक करो। आर यू गेटिंग 2744?
मेरा तो ये आ रहा है, आप भी ट्राई करो। आर यू गेटिंग द सेम? एक्स क्यूब इज इक्वल टू 2744 आ रहा है। जिनका आ रहा है हाथ खड़े कर दो जल्दी से। 2744। वेरी गुड, कंटिन्यू करो, भागना नहीं है, देयर इज नो हरी। डू इट योरसेल्फ एंड मैच इट फ्रॉम द बोर्ड। मेरे से भी गलती हो सकती है, यू कैन टेल मी कि मैम आवर आंसर इज दिस, इट्स नॉट मैचिंग विद योर्स, यू कैन टेल मी। जिनका 2744 आ रहा है हाथ खड़े कर दो। वेरी गुड वेरी गुड, कंफर्म हो गया, वेरी गुड। तो अभी हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, क्योंकि हमें ये पता करना है कि वो किसका क्यूब है। वी वांट टू नो कि 2744 किसका क्यूब आ रहा है। ठीक है, 3 2 ज़ा 6, देन 7 2 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, देन 2 से 6 2 ज़ा 12, 17, 8 2 ज़ा 16 एंड 6 2 ज़ा 12 वंस अगेन। अपने आप करो, वेरी गुड, मैच करो, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाती है। थ्री 343। ठीक है, लेट अस मेक द पेयर्स। तो आप सॉरी ट्रिपलेट्स बनाने हैं हमें, बिकॉज वी वांट टू नो द क्यूब, राइट। क्यूब के लिए हमें 3 3 के होने चाहिए पेयर्स। तो ये हमारे पास बन रहा है, तो इट विल बी 2 into 7 cube, which is equal to 14 cube. X cube is coming 14 cube. It means x is coming 14. X हमारे पास 14 आ रहा है, and they are asking 3 numbers कौन कौन से हैं। ठीक है, तो आपके पास डी ऑप्शन आएगी बेटा, मार्क कर लो इसको, प्लीज रिवाइज कर लेना इसको घर पे एक बार। 14, 28 एंड 42, ये आपके पास सी ऑप्शन, डी ऑप्शन जो है वो मैच कर रही है। एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? ये बेटा सच क्वेश्चन कैन कम इन योर सब्जेक्टिव फॉर्म आल्सो, प्लीज रिमेंबर, अब आप बड़ी क्लास में हो, आपको सेम क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आ सकता है, सेम क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव में भी आ सकता है, या फिर कहीं हो सकता है कि इनकम्प्लीट करके आधा कोई स्टेप आपको असर्शन रीजन में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, बी रेडी फॉर दैट। हैव यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन बेटा, ऑल ऑफ यू? रेज योर हैंड प्लीज वंस इफ यू हैव अंडरस्टूड, नहीं तो मैं रिवाइज करूंगी इसको दोबारा से। That's great, beta. Great of you. We have done these all question. 10th question is your homework. You can do yourself. मैं आपको हिंट दे रही हूँ इसका, 10th क्वेश्चन की ऑप्शन लिख लो, सी ऑप्शन। यहाँ पे आंसर लिख लो 10th क्वेश्चन का, सी ऑप्शन है। इसको आप घर पे करना, अपने आप करके देखने पड़ेंगे ये आपको कि कौन सा परफेक्ट क्यूब नहीं है। नीचे जो ऑप्शंस दी हुई हैं आपको करना है और ये बताना है कि कौन सा परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक है बेटा, your thing is done. MCQ are over along with many key points. Please recall these all. ठीक है, जो बच्चे घर जाके रिवाइज करते हैं, जो आप क्लास में करते हो उसको रिवाइज करते हो, प्लीज रेज योर हैंड हु डू इट। अगर नहीं करते हो तो प्लीज स्टार्ट डूइंग बेटा, ओके। यू नो दिस चैप्टर इज लिटिल डिफिकल्ट। आपकी अभी 8th क्लास स्टार्ट हुई है, दिस इज योर फर्स्ट चैप्टर यू आर डूइंग। थोड़ा सा मुश्किल आपको लग रहा होगा कि कितने पॉइंट्स इसमें समझने वाले हैं। प्लीज रिवाइज एट होम, टेक आउट सम टाइम, ओके। 10 मिनट्स स्पेंड करो, 10 मिनट्स निकालो अपने कि हाँ 10 मिनट्स में मैंने आज वो जो भी क्लास में कुछ सीखा है उसको रिवाइज करना है, ओके। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में फिर उसको दोबारा से हम यूज करेंगे, तो आपके ब्रेन में वो फिक्स होता जाएगा, फिर आपको भूलेगा नहीं। विल यू बी डूइंग इट? रेज योर हैंड, ट्राई टू डू, ओके। ट्राई टू डू, आई एम नॉट गिविंग यू एनी होमवर्क, ट्राई टू डू, ओके। यू आर ऑल ब्यूटीफुल गुड चिल्ड्रन। चलो बाय बेटा, सी यू नेक्स्ट टाइम।